बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने गालिबन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 एक्सप्लेन किए थे ऑफ एक्सरसाइज 10.3। आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, show that sine 2 theta divided by sine theta minus cos 2 theta divided by cos theta is equal to sec theta. Show that left hand side is equal to right hand side. तो जाहिर सी बात है आप लेफ्ट साइड ही कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज sin 2 theta divided by sin theta minus cos 2 theta divided by cos theta। अब कुछ लोगों के दिमाग में तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले आएंगे, वो फार्मूले इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एलसीएम लें। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, यू लेफ्ट कॉस थीटा विच इज मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस cos theta cancel, you left sin theta which is multiplied by cos 2 theta। अब न्यूमरेटर को जरा गौर से देखिए। तो न्यूमरेटर इज सेम एज sin alpha cos beta माइनस cos alpha sin beta। अल्फा की जगह 2 थीटा है और बीटा की जगह पे थीटा है। sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, it is the result of sin of alpha minus beta। इसका मतलब ये बन जाएगा sin of alpha which is 2 theta minus beta which is equal to theta whole divided by sin theta cos theta। Now sin 2 theta minus theta, it is equal to sin theta divided by sin theta cos theta। अब ये sin theta तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया 1 अपॉन cos theta। 1 divided by cos theta, it is equal to sec theta। और यही है required right hand side, because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified। Now see question number 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल इसी तरह का ही क्वेश्चन है, फिर भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 17, it is sin of 3 theta divided by sin theta minus cos 3 theta divided by cos theta, it is equal to 2। यहाँ पे भी आपके दिमाग में लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करने का ख्याल आएगा। sin 3 theta divided by sin theta minus cos 3 theta divided by cos theta। एलसीएम लें। एलसीएम आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin थीटा कैंसिल, बाकी बच गया cos थीटा which is multiplied by sin 3 theta minus cos theta cancel, बाकी बच गया sin theta which is multiplied by cos 3 theta। फिर गौर कीजिए,
It is same as sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. अल्फा की जगह पे है 3 थीटा और बीटा की जगह पे है थीटा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, which is sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. So sin of alpha minus beta, alpha is equal to 3 theta and beta is equal to theta, whole divided by sin theta cos theta. Now sin 3 theta minus theta, it is equal to sin of 2 theta whole divided by sin theta cos theta. अब sin of 2 theta किसके बराबर है? एक ही फॉर्मूला है, 2 sin theta into cos theta whole divided by sin theta cos theta. अब sin theta भी कैंसिल हो गया और cos theta भी कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2, which is the required right hand side. Because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. Now see question number 18. Question number 18. Show that tangent of theta plus phi upon 2 divided by tangent of theta minus phi upon 2 is equal to sin theta plus sin phi divided by sin theta minus sin phi. Show that left hand side is equal to right hand side. तो यहाँ चूंकि सम एज प्रोडक्ट के फॉर्मूले राइट साइड पे इस्तेमाल हो सकते हैं, so that consider right hand side. राइट हैंड साइड है sin of theta plus sin of phi divided by sin of theta minus sin of phi. अगर आप गौर करें तो sin theta plus sin phi it is similar to sin a plus sin b. a की जगह पे थीटा है, b की जगह पे phi. इसी तरह sin theta minus sin phi ये sin a minus sin b जैसी चीज है। तो सम एज प्रोडक्ट के फॉर्मूले अगर याद हैं तो sin a प्लस sin b इट इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b अपॉन 2। a की जगह थीटा है, b की जगह पे phi मल्टीप्लाइड बाय cos a माइनस b अपॉन 2 यानी थीटा माइनस phi अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय sin theta minus sin phi. It is same as sin a minus sin b, which is equal to 2 cos a plus b upon 2 यानी theta plus phi upon 2 into sin theta minus phi upon 2. अब ये 2 तो हो गया कैंसिल, बाकी आप अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. It is equal to sin of theta plus phi, sin of theta plus phi upon 2 divided by cos of same angle theta plus phi upon 2. इसी तरह cos of theta minus phi upon 2 divided by sin of theta minus phi upon 2. अब sin divided by cos it is tangent with same angle. So tangent theta plus phi upon 2, cos divided by sin with same angle it is equal to cot theta minus phi upon 2. अब चूंकि रिजल्ट में cot तो है नहीं, tangent है. You know that cot is the reciprocal of tangent.
इसे तो मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा प्लस फाइव अपॉन टू। कॉट को लिखा जा सकता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। 1 से मल्टीप्लाई होके कोई तब्दीली तो हुई नहीं। टेंजेंट थीटा प्लस फाइव upon 2 divided by tangent theta minus 5 upon 2 and it is the required left hand side. आपने राइट साइड कंसीडर की थी, रिजल्ट लेफ्ट साइड के बराबर आ गया। रिजल्ट लेफ्ट साइड के बराबर है। आप लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस रिलेशन इज वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 is sine of 5 theta minus sine of 3 theta plus sine of 2 theta. Prove that it is equal to 4 sine theta cos 3 upon 2 theta cos 5 upon 2 theta। चूंकि यहाँ पे भी सम एज प्रोडक्ट लेफ्ट साइड पे ही इस्तेमाल हो सकता है, तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 5 theta minus sine 3 theta प्लस साइन 2 थीटा। तो पहली चीज जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी शायद आपके लिए कि तीन तीन फंक्शन हैं, जबकि सम एज प्रोडक्ट में आपने तो सिर्फ दो फंक्शंस पढ़े हैं। कोई बात नहीं, आप अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखें, इट इज इक्वल टू साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इट इज सेम एज साइन ए माइनस साइन बी। साइन 2 थीटा को फिलहाल वैसा ही लिखा रहने दें। सम एज प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करें, साइन ए माइनस साइन बी इट इज इक्वल टू 2 cos a plus b upon 2 into sin a minus b upon 2। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5 थीटा, बी की जगह पे 3 थीटा। ए 5 थीटा, बी 3 थीटा and use sin a minus sin b which is equal to 2 cos a plus b upon 2 यानी 5 थीटा plus 3 थीटा upon 2 into sin a minus b upon 2, 5 theta minus 3 theta upon 2 plus sin 2 theta as it is। अब ये हो जाएगा भाई 2 cos 8 theta upon 2 into sin 2 theta upon 2 plus sin 2 theta as it is। 8 upon 2 ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 cos 4 theta into 2 भी कैंसिल हो गया, ये बन गया sin theta प्लस साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, 2 cos 4 थीटा into sin थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा into cos थीटा। दोनों टर्म्स में आपको sin थीटा नजर आ रहा है, कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले ले 2 भी कॉमन लिया जा सकता है,
वो भी कॉमन लिया। तो 2 साइन थीटा कॉमन लिया, बाकी बच जाएगा cos 4 theta from first term plus cos theta from second term। अब 2 sin थीटा ये तो वैसे ही लिखा रहने दें। ब्रैकेट को अगर आप गौर से देखें तो इट इज सिमिलर टू cos a प्लस cos b। a की जगह पे है 4 थीटा, b की जगह पे थीटा। cos a प्लस cos b इट इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया 2 cos a प्लस b अपॉन 2 यानी 4 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू cos ऑफ 4 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। a की जगह पे 4 थीटा था, b की जगह पे थीटा था। 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। अब ये बन गया 2 sin थीटा as it is 2 cos 5 theta upon 2 into cos 4 theta minus theta, it is 3 theta upon 2। So 2 multiplied by 2 is 4, sin theta as it is, arrange करने cos of 3 theta upon 2 into cos of 5 theta upon 2। अगर गौर करें तो यही है राइट हैंड साइड, because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified। कई दफ़ा ये सवाल इम्तहान में पूछा जा चुका है। क्या ख़ास बात है ये अब आप खुद गौर कीजिएगा। Now see last question of this exercise, question number 20। Question number 20, it is cos theta plus cos 3 theta plus cos 5 theta plus cos 7 theta। Prove that it is equal to 4 cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta। तो सम एज प्रोडक्ट लेफ्ट साइड ही पे यूज किया जा सकता है, तो लेफ्ट साइड ही कंसीडर करनी चाहिए। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू cos theta plus cos 3 theta plus cos 5 theta plus cos 7 theta। तो 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स का तो सम एज प्रोडक्ट नहीं होता फॉर्मूला, 2 ही टर्म्स होनी चाहिए। तो 4 है तो 2 का पेयर बना लीजिए, तो सूटेबल होना चाहिए पेयर। क्योंकि हमें मैक्सिमम एंगल 4 थीटा चाहिए, तो 4 थीटा इन 2 से आ सकता है, इन 2 से भी आ सकता है। इसलिए आप रीअरेंज कर लें। इट कैन बी रिटन एज cos 7 थीटा प्लस cos थीटा cos a प्लस cos b वाली शक्ल हो गई। और यहाँ पे भी cos 5 थीटा cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब आप पहले फर्स्ट ब्रैकेट को देखें, इट इज सेम एज cos a प्लस cos b। a की जगह पे 7 थीटा है, b की जगह पे थीटा है।
और सेकंड ब्रैकेट को देखें तो ए की जगह पे 5 थीटा है, बी की जगह पे 3 थीटा है। तो दोनों ब्रैकेट्स में cos A प्लस cos B का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा 2 cos A प्लस B अपॉन 2, 7 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू cos A माइनस B अपॉन 2 यानी 7 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस एज इट इज सेकेंड ब्रैकेट में भी cos A प्लस cos B, मगर A की जगह पे है 5 थीटा, B की जगह पे है 3 थीटा, तो ये बन गया 2 cos A प्लस B अपॉन 2, 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 इंटू cos A माइनस B अपॉन 2, 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। ये हो गया भाई 2 cos 8 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 6 थीटा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे हो गया 2 cos 8 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 2 थीटा अपॉन 2। ये हो गया अब 2 cos कैंसिल करें, 8 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स 4 थीटा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो इसका मतलब cos 3 थीटा प्लस 2 cos 8 थीटा अपॉन 2 इट इज अगेन 4 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया cos थीटा। अब फिर गौर करें, आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, आप cos 4 थीटा भी कॉमन ले सकते हैं। तो जो चीज़ कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लें। 2 cos 4 थीटा चूंकि दोनों टर्म्स में मौजूद है, कॉमन लिया, बाकी बच जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। आप इस ब्रैकेट को फिर देखें, इट इज अगेन सेम एज cos A प्लस cos B। A की जगह पे अब 3 थीटा है, B की जगह पे थीटा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, and use cos A plus cos B again, which is equal to 2 cos A plus B upon 2 यानी 3 थीटा प्लस थीटा upon 2 into cos A minus B upon 2, 3 थीटा minus theta upon 2. Now it is equal to 2 cos 4 theta multiplied by 2 cos 4 theta upon 2 into cos 2 theta upon 2। तो ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 cos 4 अपॉन 2 कैंसिल हुआ 2 थीटा, 2 अपॉन 2 कैंसिल हुआ cos थीटा। नाउ it is equal to 2 multiplied by 2 is 4, cos 4 theta, cos 2 theta, cos theta। आप अरेंज कर लें तो ये हो गया 4 cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta, which is the required right hand side, because left hand side is equal to right hand side, so it is verified। तो अब हमने शुरू करना है नया चैप्टर नंबर 11। तो ग्राफ्स हैं, ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, अगर सिलेबस में ऐड कर दिए गए तो वो आपको करा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर नंबर 12,
सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो अब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हम शुरू तो कल करेंगे, लेकिन कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें वो सुन लें। चूंकि हमने पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्सरसाइज 12.1 में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब दिस एंगल इज राइट। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड जो भी होती है उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल ऑफ कंसीडरेशन है तो ये साइड कहलाएगी बेस और थर्ड साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। अगर फर्ज करें एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये होता तो फिर ये साइड बेस बन जाती, ये साइड परपेंडिकुलर बन जाती। यानी बेस और परपेंडिकुलर का ताल्लुक एंगल ऑफ कंसीडरेशन से होता है। जो एंगल ऑफ कंसीडरेशन है उससे रिलेटेड साइड बेस होती है। साइन थीटा, it is perpendicular divided by hypotenuse. Cos theta, it is equal to base divided by hypotenuse. Tangent theta is equal to perpendicular divided by base. इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम वो भी पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, square of hypotenuse is equal to square of base plus square of perpendicular। इसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसको समझने के लिए पहले बचपन में एक थ्योरम पढ़ा था आपने कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक नॉन पैरेलल लाइन विच इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मेक सेम एंगल्स with pair of parallel lines. These angles are always equal. These are called alternate angles. इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये आपने प्रूव किया था थ्योरम्स में। हमें प्रूव तो नहीं करना, आपको कम से कम ये रिजल्ट्स ज़रूर याद होने चाहिए। तो अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उसको आप एक एग्जाम्पल से देखें। फर्ज करें आप कहीं मौजूद हैं, दोस्त मौजूद है ज़मीन पे, आप मौजूद है आसमान पे। दोनों एक दूसरे को टिकटकी बांध के देखे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं एक दूसरे को। तो आपकी बेस लाइन, जाहिर सी बात है आपकी आंखें यहाँ हैं, यहीं से देख रहे हैं, आपकी बेस लाइन ये है। आपके दोस्त की आंखें यहाँ पे हैं, बेस लाइन उसकी ये है। अगर गौर करें तो ये पैरेलल लाइंस हैं। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। और ये जो मैंने लाइन बनाई है, जो विजन है आपका,
आपकी आंखों का दोस्त की आंखों के साथ, ये नॉन पैरेलल लाइन है विच इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मेक्स सेम एंगल विद पैरेलल लाइंस. इसका मतलब दिस एंगल it is equal to this angle. These angles are alternate angles. अब ये alternate angles तो बराबर होते हैं, ये पुरानी जबान. आप ऊपर मौजूद हैं तो जो एंगल होगा नीचे देखने के लिए ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. और आपका दोस्त नीचे मौजूद है, वो ऊपर देख रहा है, उसकी सिरी ऊपर है, इसका मतलब वो जो एंगल बनाता है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन. Angle of depression always be equals to angle of elevation. Angle of depression always be equals to angle of elevation. क्यों ये एक दूसरे के बराबर होते हैं? क्योंकि ये alternate angles. एक्सरसाइज 12.1 में आप समझ लें कि बहुत ही बेसिक किस्म के राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ अननोन फाइंड करना सिखाया गया है. ये हम इंशाअल्लाह कल शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कल ही ख़त्म कर दें. इस चैप्टर में भी कम अज़ कम 25-30 फार्मूले आपने ज़रूर पढ़ लें. तो वो सारे फार्मूले भी मिक्स हो जाते हैं अगर आप वक्त पे काम नहीं करेंगे. तो पुराने फार्मूले अच्छी तरह रिवाइज करके रखिएगा ताकि नए फार्मूले कल से अगर हम लिखवाएं तो फार्मूलों की मिक्सिंग यानी फार्मूलों की हलील